Managing side hustles with full-time job, full chaotic. I know. If it was an ideal world, I would tell you to leave your job, quit your job, and sit back home and work on your dreams. But ऐसा नहीं चलता है. You can't, क्योंकि कितना भी उसको romanticize कर लो, you cannot sit at your home without the financial backing and follow your dreams, because the people who are able to do that, trust me, they either have some kind of financial backing from family, from their own savings. Maybe over the years they have saved a lot and now they are able to afford that. But if you are not in that situation, like I'm not in that situation, for me, I have to earn, I have to work, otherwise I cannot afford even my books. I can't even afford to read, right? So in that case, we have to learn how to manage side hustles along with the full-time job. So sit down, bestie, because today we are going to talk about consulting and content. Because hey, I am Ankita. This was not a good way to start the introduction, but hello, I am Ankita. I am 27 years old. I am from Gwalior, but I'm living in Hyderabad for my job. And I am working in one of the big four firms in project management office, and it's been almost 5 years since I've been working, and all these years I also had something or the other going on in my life, all things creative. Pay off kiya hai ki nahi, I don't know. It's very subjective. I mean, I have found great connections on internet. I now know कि मुझे किस में मज़ा आता है, so that's fine. और बाकी ठीक है. So yeah, so we are going to talk about how to manage your work and life, जो कि हो नहीं पाता है, but we try. ठीक है. So let's go. I have also made a full-fledged PPT for you because hey, we are talking work life, right? Work. Firstly, adulting sucks. There is no brainer on that because there are so many things you have to do and such little time. There is this creative urge कि कुछ करना है, but और करना है तो क्या करना है. There are so many hobbies. If you are someone जिसके पास एक sorted hobby है कि हाँ मुझे I have to write a book, okay great, then you know कि क्या करना है and just sit down and write. बट फॉर पीपल लाइक मी जिनके पास इतनी सारी हॉबीज़ हैं, आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू कुक, आई वॉन्ट टू क्लीन, हाँ आई लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट ऑफकोर्स, एंड देन पता नहीं इतना कुछ करने के लिए है एंड टाइम, we'll talk about that later. And then also when you are doing so much and when you are thinking about all of this, then there is this thought also going on in head ki what is the point? Why am I doing all of this? Let's go. Where is the time? What to do with this little time? Opportunity cost? Is it cringe? And in the end, yes, I will make you shut up and work. Let's begin. First, it sucks. See, I know when you are tired, normal person would go to his phone and scroll and sleep. I mean, that's what we all want to do because in the end, we want comfort. We are human beings, we are tired, and when we are tired, we choose comfort. We want to do things जिससे हमें आराम मिलता है, and that is important also, अगर वो नहीं करेंगे तो मशीन की तरह हम काम कर रहे हैं, बट इन दी एंड मशीन को भी रेस्ट देना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, वरना इट विल ऑल्सो फेल. तो येस, रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ वी गो इन दैट कम्फर्ट जोन ओनली, तो फिर टाइम बचेगा ही नहीं. एक लाइफ है, वो हम ऐसे ही गवा देंगे. करेक्ट. तो येस, you may hate it, but you have to work for your dreams because these are your dreams. No one is going to come and tell you कि अरे this is what you wanted to do, what happened about that. I mean, अगर लोग आएंगे भी तो only to criticize, but only you are the person who will bear that cost. So it's important because today you are having this urge, today you are having this ambition and dream, and you have these great ideas to work on. Maybe after a month or so you won't have it anymore. And I read it in a book called Big Magic that these ideas, these inspiration, right, so these are like alive, these float around you. Today that idea is with you. If you don't work on it,
next day that idea may transfer to someone else. Tell me, hasn't it happened with you before? Sometimes we think of something, right, कि हाँ ये अच्छा idea लग रहा है, I can work on this, but then you don't because you get busy with your life, which is totally fine. You get busy with your life and then months or years later you come across someone, maybe your friend, maybe somebody you know, and then they come and tell you that, hey, see what I have done, and what they'll bring to your table is that same idea, and you'll think कि ये तो मेरा idea था लेकिन उस टाइम पे था, you didn't work and now it's somebody else. This is how ideas work, so इसलिए it's important to work on it right now. Then the main problem is, where is the time? I get it, nobody gets it more than me, because after spending 12 to 13 hours also sometimes at work, you just don't have the energy, you don't have time. कब मतलब कब करना है ये सब कुछ. So there are days when you don't get time to even eat properly. Then how do you think कि कोई बैठ के कंटेंट पे काम करेगा या फिर कोई अपनी बुक लिखेगा या कुछ भी करेंगे. तो प्रॉब्लम हमें पता है, लेकिन उसका सल्यूशन भी हमको पता है. सो व्हाट टू डू विद द टाइम, ठीक है. सो सी द सल्यूशन इज कि लेट्स डिवाइड आवर डेज. देयर विल बी डेज व्हेन यू आर tired. Okay, normal day, you came back from office, you are tired. On those days what I tend to do is, मुझे पता है अब मैं बैठ के पूरी एक राम कथा तो नहीं लिख सकती हूँ, तो व्हाट आई विल इंस्टेड डू इज़ कि जो चीज़ें मेरे लिए आसान हैं, जैसे कि मुझे पता है मेरे पास आइडियाज़ बहुत इजीली आते हैं, तो आइडियाज़ लाना सोचना ये इजी है. तो ऑन दोज डेज आई विल जस्ट ओपन माई नोट्स और या फिर डायरी एंड आई विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट देम. तो व्हेन आई हैव अ लिस्ट ऑफ आइडियाज़ विद मी, जब मेरे पास एनर्जी होगी, जब टाइम होगा, आई कैन वर्क ऑन दोज आइडियाज़, राइट. तो एंड उस टाइम पे आई कैन ऑल्सो रीड. सो आई चूज दोज डेज टू read books as much as I can. Then there are days when you don't even have that much energy to read something. होते हैं ऐसे दिन भी होते हैं. So on those days what I tend to do is I'll just start YouTube फ़ोन में या कहीं पे भी, and जो मुझे काम करना है उससे रिलेटेड कोई मैं वीडियोस चलाऊँगी and I'll watch them. So you can still spend that time in working for your side hustle even when you are not working. So you are eating a good meal and you are simply watching a video on how to edit. मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखना होता है, लेकिन अलग से मेरे पास टाइम नहीं होता है. सो दैट आई डू स्पेशली व्हेन आई एम ईटिंग एंड व्हेन आई एम अलोन, बिकॉज इफ़ आई एम विद माई हस्बैंड उस टाइम पे आई यूज़ दैट टाइम टू टॉक. ठीक है, वो भी ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर सिर्फ काम करेंगे तो फिर जियोगे कब. तो थोड़ा टाइम वी हैव टू स्पेंड इन लेजर ऑल्सो, विच इज़ टोटली ओके. बट जब टाइम मिल रहा है, आपको कब टाइम मिल रहा है ना, तो उस टाइम को यू हैव टू यूटिलाइज इन लर्निंग न्यू थिंग्स. एंड देन व्हेन देयर आर सम बेटर डेज, लाइक ऑफिस में आई थिंक एक दिन देर आर सम वीक जब एक भी दिन नहीं मिलता है, बट देन देयर वुड बी सम वीक्स व्हेन यू आर गेटिंग 1 or 2 days जहाँ पे यू गेट टू लॉग ऑफ ऑन टाइम. आई एम नॉट टेलिंग अर्ली, आई एम जस्ट टेलिंग ऑन टाइम. आपने अपना 8-9 आवर्स का शिफ्ट ख़त्म किया एंड यू गेट टू गो होम. सो ऑन दोज डेज प्लीज़ यूटिलाइज सम टाइम. वो जो टाइम होता है उसमें आई विल सिट डाउन, आई विल राइट स्क्रिप्ट्स. अगर मैंने कुछ वीडियोस पहले से रिकॉर्ड की हुई थी देन आई कैन एडिट दोज. तो दैट टाइम आई यूटिलाइज इन क्रिएटिंग एसेट्स काइंड ऑफ थिंग, इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं. एंड ऑन वीकेंड्स which is the best time, which is the only time we get, and I know उस टाइम पे मन करता है कि बस सो कुछ नहीं करो, and कभी कभी वो भी चलता है. बट इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर साइड हसल्स देन यूज़ दोज वीकेंड्स. तो वीकेंड्स पे बैठ के हमें क्या करना है कि अगर हमने आइडियाज़ की लिस्ट बनाई हुई थी, सो यू कैन वर्क ऑन दोज आइडियाज़. अगर आपके पास में कोई आइडिया बनाया है, स्क्रिप्ट रेडी थी जो आपने पहले से लिख के रखी हुई थी, रिकॉर्ड दैट. अगर स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ फ्री फ्लो में कुछ बोलने का मन कर रहा है, जैसे कि आज मैंने थोड़ा सा पॉइंटर्स मैंने बना के पहले से रखे हुए थे, एंड बाकी आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. तो क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है, तो ऐसा कुछ दिन अगर मिल रहा है हमको, दैट टाइम वील यूटिलाइज एंड वील क्रिएट आर इन्वेंट्री. Okay, so this is how we are going to utilize entire week and not just wait for that one good day when we are free and when we have time.
Okay, and then yeah, when you are someone with multiple interests it gets difficult to decide कि करना क्या है. Okay, so let's do this way. Take a diary या कुछ भी, make a list of things which interest you. आपको जो जो करना पसंद है, like अगर आपके पास एक पर्टिकुलर हॉबी ऑलरेडी सेट है देन तो इट्स ग्रेट, बट इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग कि मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे अगर कंटेंट भी बनाना है तो मुझे इसके बारे में बनाना है, देन इन दैट केस टेक आउट अ पेन एंड पेपर, उस पर लिखो, एक लिस्ट बनाते हैं. लिस्ट डाउन ऑल दी थिंग्स दैट यू आर naturally good at, like communication, it could be event planning, it could be makeup, it could be fashion, it could be fashion designing, it could be anything. So the things that you are interested in, right? And then उसमें आप देखो कि आपके पास अभी जो resources हैं उस वो आप किस चीज़ को support करते हैं, then research about that. गो टू इंस्टाग्राम, लाइक अगर आपको इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना है और आपको या फिर आपको यूट्यूब पे बनाना है, गो टू दिस प्लेटफॉर्म, सी कि उस पर्टिकुलर नीश में जो बाकी के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तो गेट सम आइडियाज़, देन सी कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है. इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग नाउ देन फील फ्री, कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो. इवन व्हेन यू ट्राई देन ओनली यू गेट टू फाइंड आउट कि क्या एक्चुअल में आपके लिए वर्क कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मी, तो आई एम एक्सप्लोरिंग, जो मुझे मन कर रहा है मैं वो कर रही हूँ, बिकॉज अभी इतने लोग नहीं हैं जो हम पे फोकस कर रहे हैं. सो दिस इज़ द राइट टाइम कि वी कैन एफ अराउंड एंड फाइंड आउट. करेक्ट. सो या, सो दैट वे मेक अ लिस्ट एंड लेट्स सी कि उसमें से हम क्या चीज़ है जिस पर भी फोकस करना है. आई चोज कॉन्टेंट राइट नाउ, यू टेल मी वॉट आर यू चूजिंग एंड देन वी कैन डिस्कस लेटर कि उसमें और काम हम कैसे कर सकते हैं. एंड वेन you are all set to start, and suppose if you are starting with content, and mostly the video was focusing on content because this is what I'm doing. So if you are, now that you have decided your mind कि हाँ ये है, इसके बारे में I'm going to make videos about, I am starting my journey now, then in that case comes the fear of being cringe. क्योंकि मुझे भी कई बार होता है कि मैं बना तो रही हूँ, बट वॉट इफ़ दे से कि वॉट इफ़ दे थिंक बैड अबाउट मी, वॉट वुड दे थिंक अबाउट इट, क्या बोलेंगे वो, मैं ऐसे क्यों बोल रही थी, मैं ऐसे क्यों, लाइक द वे वी लुक, द वे वी साउंड, वी गेट कॉन्शियस अबाउट ऑल ऑफ दैट. लेकिन इफ़ यू एक्चुअली हैव टू वर्क, ट्रस्ट मी, you have to let go all of these fears, because just ask yourself a question, who really cares, like जिन लोगों के बारे में मैं सोच रही हूँ. So okay, one more thing, like whenever we are feeling कि ये cringe होने का या वो, फिर से let's be honest, you will know कि कौन वो लोग हैं जिनकी वजह से we are feeling that way. I also know कि हाँ ये लोग हैं जिनकी वजह से I am thinking कि they'll see my videos and then they'll talk shit about me. So when I'm aware कि यार ये लोग हैं, तो मैं उनको जाके ब्लॉक कर दूँगी. I do that. I recommend you also do that. क्योंकि वो मुझे ना तो सपोर्ट करेंगे. Then in that case, like their existence itself is a question right now on my page कि अगर वो है, वो सिर्फ देख रहे हैं and then वो उससे engage भी नहीं कर रहे हैं, then they are kind of hampering my algorithm, right? So what I would rather do is block them, restrict them, whatever I can to protect my own peace of mind. That is important. Lot of us do that. Please do that. ठीक है. And suppose if it is someone you cannot block, then just think कि यार उनके सोचने ना सोचने से फ़र्क क्या पड़ रहा है. Because today if I stop putting myself out there just because of them, then कुछ टाइम के बाद में when I am seeing कि बाकी लोग जो उन्होंने स्टार्ट किया and they are at some good level, ठीक है, मतलब सक्सेस की भी बात नहीं करते हैं, बट स्टिल मुझे वो गिल्ट नहीं चाहिए ना कि मैंने कुछ काम किया नहीं, वो भी इन लोगों की वजह से जो कि मेरा अच्छा कभी चाहते भी नहीं थे. सो द पीपल हु आर नॉट आवर वेल विशर्स, जो हमारे किसी काम भी नहीं आने वाले हैं, उनके बारे में सोच के वी कैन नॉट लेट आवर लाइफ गो लाइक दैट, राइट? तो एक पॉइंट पे आके आपको उन सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा एंड यू हैव टू मूव ऑन इन योर लाइफ एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू डू. एंड अब वो अच्छा सोचे बुरा सोचे डजंट मैटर, सो जस्ट स्टार्ट. कोई कुछ नहीं सोच रहा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है. आज वो आपके बारे में बेकार सोचेंगे भी तो नेक्स्ट डे दे विल फाइंड समवन एल्स टू टॉक शिट अबाउट, बिकॉज अगर कोई एक के बारे में बोल रहा है तो वो बाकियों के बारे में भी बोल ही सकते हैं, राइट? दैट्स वाई इतना भाव नहीं देना है किसी को.
and in the end, shut up and start. Because what is your excuse? I have seen so many people talking कि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ. अरे अच्छा फ़ोन क्या होता है? Like I have seen so many people getting popular despite using very लाइक वैसा फ़ोन जिससे काफ़ी ब्लरी वीडियोज़ आते हैं. ये मेरा वाला तो फिर भी बहुत ठीक है. अदरवाइज़ इफ़ आई एम थिंकिंग इन दैट वे देन तो फिर मेरे पास भी फ़ोन सही नहीं है, तो फिर मैंने क्यों स्टार्ट किया है? So here is the thing, nobody really cares what phone you are using, how your voice is sounding. क्योंकि अगर मेरे सामने मैं स्क्रॉल कर रही हूँ एंड मेरे पास में कोई एक वीडियो आती है, आई एम वॉचिंग दैट वीडियो, अब मैं ये थोड़ी ना नोटिस कर रही हूँ कि यार इसकी लाइट कितनी अच्छी आ रही है या वो इसकी आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है. वो मैं करूँगी अगर वो जो है वो फोटोग्राफी के लिए ही स्पेशली कुछ कर रहे हैं लाइट के केस में, और ऑडियो में तब ध्यान दूंगी अगर वो म्यूज़िक रिलेटेड कुछ कर रहे हैं. अदरवाइज डजेंट रियली मैटर. अगर कोई बढ़िया बात बोल रहा है तो मैं उसको सेव करूँगी, शेयर करूँगी. अगर कोई बेकार बात बोल रहा है तो मैं उसको फिर भी स्क्रॉल करके हटा दूँगी. अभी तो बिल्कुल मैटर नहीं करती है, बिकॉज जब आप स्टार्ट कर रहे हो इतने लोग आपको देख भी नहीं रहे हैं तो क्या क्या सोच रहे हैं, मतलब डजेंट रियली मैटर. ओके, जस्ट स्टार्ट. बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि सी आई एम सक्सेसफुल, तो ये नहीं, मैं नहीं हूँ. मैं तो बिल्कुल अभी स्टार्ट की हूँ. मुझे पता भी नहीं है कि आगे चल के मुझे कुछ इसका मिलना है नहीं मिलना है, लोग आएंगे नहीं आएंगे, डजेंट मैटर. वाई आई एम डूइंग दिस इज़ बिकॉज मेरे अंदर एक वो था कि मुझे कुछ करना है. मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स हैं, इतना मैं ओवर थिंक करती हूँ. जब मैं इतना बकबक नॉर्मली अपने पतिदेव से, अपने बेस्ट फ्रेंड से या बाकी सबसे करती हूँ, देन वाई नॉट यूटिलाइज ऑल ऑफ दैट ओवर थिंकिंग एंड डंप इट हियर. बिकॉज on internet there are so many people who are thinking about the same things, who are looking up for same kind of topic, and they don't have anyone who is talking about it. And yeah, sometimes this also happens that when I'm planning to create content on some topic, I'll think कि यार इस topic पे तो बहुत लोग already बात कर चुके हैं. Then तो so what? Have I talked about it? No. अगर मेरे पास कुछ है, मेरे पास कोई टॉपिक है, मुझे उस पर बात करनी है, देन करनी है. इंटरनेट पे दिस इज़ माई पीस ऑफ दिस इज़ माई कॉर्नर ऑफ इंटरनेट एंड आई कैन टॉक अबाउट वॉट एवर आई वॉन्ट. सेम. सो यू माई फ्रेंड, टुडे you need to go back and take out the diary, a pen, a page, paper, phone, note, जो है वो निकालो, अपने आइडियाज़ को उधर डंप करो एंड मेक अ प्लान कि आपको किस चीज़ के बारे में वर्क करना है. इफ़ इट इज़ कॉन्टेंट, स्टार्ट, प्लीज़ स्टार्ट. अगर आपको अपना फेस नहीं शो करना है, देन इन दैट केस यू कैन स्टिल क्रिएट सम एडिट्स, राइट. लाइक जो फ्री स्टॉक वाले इमेजेस या वीडियोस आते हैं, आप उसमें अपना वॉइस ओवर डाल सकते हो. अगर आपको वॉइस ओवर नहीं डालना है, यू सिंपली वांट टू क्रिएट सम नॉर्मल कैरियोजल वाले पोस्ट, इन दैट केस कैनवा इज़ देयर. स्टार्ट डूइंग दैट. एंड I'm guessing कि some of you or most of you are already doing a lot of things. Then in that case I just hope इस पूरे वीडियो में आपको कुछ एक या दो भी चीज़ अगर काम की लगी हो, then this was worth it for me. If not, then it's fine bestie, we are besties now, right? We can yap, और हर जगह कुछ काम का मिलना ज़रूरी नहीं होता है. ठीक है, so हर चीज़ वैलिडेशन के लिए उसके लिए नहीं कर रहे हैं. I am tired. I speak a lot. But okay, I hope it was worth your while, and thank you so much for hearing me yap. Thank you so much for supporting me. I really hope that if you are watching this from a point of view of a beginner, and if you just want to start creating, then I really wish you all the best. And do tell me in the comment section if you found this video slightest bit helpful and I would be happy to interact with all of you. Thank you. Bye bye.